हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા બધાને મને લાગી, દાદા ભજનની લાગી, ભક્તિ રસમાલાઓ છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યો વકારો, જીવન મારું બન્યો વકારો, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાતા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
દાદાનું તમારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद ओके लक्ष्य हो गया है लक्ष्य हाँ तो नौ कलम पहली बोलो बाद में छीना है बाद में श्रेया बाद में आपको जय सच्चिदानंद. हे शुद्धात्मा दादा नहीं हे राधा भगवान दोधारी जीवात्मा गर्भवती किंच आदमी हम न डूबे ठेस न पूछे न पूछा बजाय न पूछाने के प्रति अनुमोदना न की जाए ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए. मुझे किसी भी दोधारी जीवात्मा के प्रति किंचित भी ठेस न पहुंचे न पूछा बजाय सिया वादवानी सिया वादवत અને સિયાવાદ મન કરવાની પરમ શક્તિ દીજીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે ન ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे राधा भगवान मुझे किसी भी दोधारी आत्मा के रहते किंचन भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए न करवाया जाए न कर्ता के प्रति न अनुमोदा एवी परम शक्ति ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય ના બોલવાઈ જાય કે ભૂલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ નિર્ધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે નિર્ધારી હોય તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. हे राधा भगवान मुझे किसी भी रस में लुब्धता न हो ऐसी शक्ति दीजिए. मुझे समरसी खुराक लेने की शक्ति दीजिए. हे राधा भगवान મને કોઈ દેધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન અથવા મૃત્યુ પામેના કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ અપરાધ અવિનય ન કિયા જાય ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद केशवन जी केशवन जी जय सच्चिदानंद. श्रीमंत्र बुलाए प्लीज. नमो वितरागाय नमो વિતરાગાય नमो अरिहंताणम नमो હરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो આયર્યાણમ नमो उवज्जायाणम नमो જાયાણમ नमो लोये सव साहुणम नमो લોહે સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो તો પંચ નમસ્કારો सव पावपणासनो નવ પાવ પણાસણો मंगलाणम च सव्वेसिम મંગલાણમ ચ સવેસે परमं हवै मंगलम હવે મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिद्ध रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में और से प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। कैसा रहा मम्मी के साथ? हाँ, मेरे साथ अच्छा रहा। और कुछ करिश्मा? हाँ, आज अच्छा रहा। दीदी के साथ? नहीं। नहीं। ओके श्रेया। हाँ जी सच्चिदानंद। हे दाता भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। अनुज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हिंदी सेपरेशन प्रेयर। हे शुद्धात्मा दाता भगवान आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दाता भगवान आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दाता भगवान आप रियल और दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। गुजराती। જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, એ દક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, એ દક્ષિબા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા તમે પરમાનન્ટ છો, એ દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કે હિન્દી આપણે હેલ્થ हाँ, स्वास्थ्य शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान मुझे इस संबंध में शक्ति दे दीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अध्ययन करने से उत्कृष्ट गुण देगा। अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान मुझे इस समय में शक्ति નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારું વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચિન. आहार आहार प्रेयर किसको आता है गुजराती? हिंदी, इंग्लिश?
आहार प्रेयर। श्रेया, मम्मी ने नहीं दिखाया आपको? नहीं? हिताक्षी बा, मम्मी ने नहीं दिखाया? दक्ष, हिंदी में नहीं दिखाया मम्मी ने? हाँ, हमने पर्सनली सबको भेजा था। नहीं, नहीं? एक मिनट देख लेता हूँ। कल वो मम्मी को बोलना दक्ष। हिताक्षी बा, दादा देख लेता हूँ। हिताक्षी बा, मम्मी ने नहीं दिखाया? मम्मी ने नहीं दिखाया था, मम्मी भूल गए थे कि मैंने मोबाइल ही नहीं देखा था आज, क्योंकि अब एग्जाम आ रही है मंडे से। तो मोबाइल में देखा था तो आपको आता है कि नहीं? शुरू किया कि नहीं? मैंने रीड एक ही बार किया है अभी। ये याद नहीं है तो बहुत सिंपल है। ओके, किसके पास है? ओके, गुजराती में बोलो। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ આહારમાં રહેલા સર્વે ગુણોને નમસ્કાર કરું છું. આહારમાં રહેલા જાઓ, શુદ્ધાત્મા પહેલેથી ભગવાન પહેલેથી પહેલેથી હતું. પહેલેથી એવું છે આ નામ ભગવાનનું છે? You cannot do it. दादा हाँ बोलो लक्ष्य। हाँ, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में आहार में हाँ, मम्मी उधर है? नहीं। हाँ मम्मा, एक मिनट। मम्मी को हाँ। बोलो, मम्मी को बोलो पढ़े। लक्ष्य, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान नहीं नहीं, आप की रिपीट मत करो। मोनिका दीदी, जस्ट यू रिसाइट इट, आप बोलिए। अच्छा मैं इधर बोलूं। प्रत्यक्ष मोनिका बहन आप बोलिए। मुझे बोलना है। हाँ, आपको बोलने का है। हाँ ठीक है, रिपीट करूंगी। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में आहार में सम्मिलित सर्व गुणों को नमस्कार करता हूँ। आहार में समाहित शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। आहार के रक्षक देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ। आहार ग्रहण करने वाले शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय श्री, थैंक यू। कल दक्ष आपको आना मांगता है। हाँ गुजराती में આવી ગયું? મમ્મી છે? શ્રેયા, નથી. મમ્મી નથી? ના. ओके। दरअसल आपने आहार का प्रेयर देखा था? नहीं, मैंने तो चर्चा अटेंड नहीं किया था. क्या करते छीना है आपने दोनों को? मैं पापा मम्मी को भेजा था, मोनिका को भेजा था। क्या करते हैं आप लोग? ओके चलो, कौन सा आज सारा दिन में 3 गोल में से कौन सा इनसिंसियर था मोनिका? जय सच्चिदानंद। स्टडीज में मैं इनसिंसियर, जो कल मेरी टेस्ट है उसके लिए भी मैं उसके लिए पढ़ाई नहीं किया, बाकी मैंने जो होमवर्क था उसी को कंप्लीट किया था। और उसमें मैं इरेगुलर थी स्टडीज में, और हेल्थ में मैं इरेगुलर थी। सूर्य नमस्कार आज मैंने पूरा नहीं किया था। नहीं और खाली रिपोर्ट दो, क्या किया वो नहीं मांगता है हमको। इनसिंसियरिटी किस में थी वही मांगता है। हाँ 1 स्टडीज 2 में 3 स्टडीज में इनसिंसियर रही, हेल्थ में इरेगुलर रही, और सत्साधन में इनसिंसियर रही। छोटी हाँ जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में मैं इनसिंसियर रही और दादा ज्ञान में भी मैं इनसिंसियर रही। खुशी जय सच्चिदानंद। आज मैं स्टडी में इनसिंसियर थी, हेल्थ में इनसिंसियर थी, दादा के ज्ञान में भी इनसिंसियर। श्रेया
सच्चिदानंद, मैं आज हेल्थ में इनसिंसियर रही और स्टडीज में भी इनसिंसियर। श्रेया, आपने 2 ही बोला। हाँ, और दादा में मैं इरेगुलर रही थी। ऐसे बोलो ना, क्या प्रॉब्लम होता है हिताक सिवा। हे सच्चिदानंद, मैं आज हेल्थ में सिंसियर रही थी, स्टडी में इनसिंसियर रही थी, दादा के ज्ञान में भी इनसिंसियर नहीं रही थी। गुरसल, जय सच्चिदानंद, मैं आज हेल्थ में सिंसियर रहा था, स्टडी में सिंसियर रहा था और दादा ज्ञान में इनसिंसियर रहा था और मेरा रिजल्ट भी आ गया है कौन सा कितना आया? 90%। वेरी गुड। और आप तीनों में सिंसियर था? नहीं, दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं था। क्यों, क्या हो गया था? वो और आप मैंने रिपोर्ट तो नहीं लगता है, तो सिंसियरिटी दोनों में कैंसिल हो गया। ओके दक्ष। जय सच्चिदानंद, आज मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर इसलिए नहीं रहा था क्योंकि आज स्कूल का टाइम हो रहा था, तो मैंने सारे संसाधन कर दिए थे, बस मैंने आरती नहीं करी थी। हिताक सिवा? हाँ, मैं स्टडी में सिंसियर रही थी, मैंने 4 सब्जेक्ट किए थे। तो स्टडी में सिंसियरिटी मैंने कल डेफिनेशन बोला था कि आप स्कूल में जाते, घर पे आते तो रिवाइज कर, जो पढ़ा और रिवाइज किया और नोट्स लिखा, होमवर्क किया और बाद में नेक्स्ट डे का क्या सब्जेक्ट है वो देखने का, वो सिंसियरिटी में वो सब किया। हाँ, वेरी गुड। ओके केशव दादा, अभी आनंद। सिंसियरिटी का तो बहुत दिल्ली दूर है। आपने सुना, बोला आपने, देखो अभी ये तीनों में सिंसियर नहीं होता है, हो सकता है एक्सरसाइज में, हेल्थ में, स्टडीज में संसाधन भी पूरा नहीं हो सकता है। केशव दादा, हाँ अब बोलो, बच्चों की बातें करो। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दादा बोलते थे कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम पक्का निश्चय नहीं करेंगे, तो हम सिंसियर कभी बन ही नहीं सकेंगे। तो दादाजी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, एक तो कि हमको निश्चय करना पड़ेगा। जैसे ही हम निश्चय करेंगे और हम अपने अंदर ऐसा डिटर्मिनेशन करेंगे कि मुझे हर एक जगह पे, हर काम में, पढ़ाई में, सत्साधन में, दादा के ज्ञान में सिंसियर रहना है, तो फिर आपको साइंटिफिक सर्कमस्टेंस, सब एविडेंस ऐसे इकट्ठे होंगे, आपको अच्छे अच्छे संयोग इकट्ठे होंगे, पर आपका अंदर से निश्चय, जो दादा गुजराती में अच्छी शब्द में होते, डचू पचू, यानी मतलब चलेगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, जब तक ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर चलेगा तो हम कभी लाइफ में सिंसियर बन ही नहीं सकेंगे। हमको तो रोज अपने आप को मार्क्स देनी चाहिए कि भाई किस तरह से हम अपने निश्चय में ठीक रहें। हमको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम सिंसियरिटी कैसे रह सकते हैं। तो 2 चीजें हैं सिंसियरिटी रहने के लिए। एक तो हमको अपने आप से ये ख्याल आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सिस्टम में हूँ और मेरा निश्चय बरोबर चल रहा है, तो फिर आपको सब संजोग अच्छे मिलेंगे। आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, आपको साधन करने का टाइम भी मिल जाएगा। पर जब तक आपका निश्चय पक्का नहीं होगा तो आपको संजोग ही नहीं इकट्ठा होगा। सबसे पहले तो आप सुबह को उठ के दादा भगवान से प्रार्थना करें कि हे दादा भगवान, मुझे तीनों 3 चीजों में, जिनके लिए रोज हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम आज सिंसियर रहे, मुझे इन तीनों 3 में सिंसियर रहने की शक्ति दो। दादा से रोज शक्ति मांगो और फिर अंदर निश्चय करो कि आज कुछ भी हो जाए मैं किसी में भी अनसिंसियर नहीं रहूंगा। ऐसा जब हम अंदर अपने आप में निश्चय करेंगे, पक्का निश्चय करेंगे, तो उसके बाद हमको हर संजोग ऐसा मिलेगा। हमारे पास दादा बोलते बहुत बड़ी शक्ति है।
ये तो हमको क्या खुद को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या शक्ति पड़ी हुई है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो आपका निश्चय और दूसरा दादा भगवान की शक्ति। वो दोनों जब इकट्ठी होगी तो आपको कहीं भी फेल नहीं होगे, आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। पर ऐसा आप प्रैक्टिस करके देखो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा क्यों बोला गया है, सबको पता है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा प्रॉवर्ब किसी को पता है? हाँ, तो ये प्रैक्टिस करने का मार्ग है, अभ्यास करने का मार्ग है। रोज हमको जहां जहां भी हम फेल होते हैं तो हमको अपने आप में ऐसा, दादा भगवान की हाजिरी में जब दादा भगवान हमसे पूछते थे कि आज तुमने क्या किया, आज दादा मेरे से ये भूल हो गई, तो दादा फिर ऐसा बोलते थे, एम आज पूरा दिन ऐसा वेस्ट हो गया आपका, तो आपको खेद नहीं हुआ, आपको अंदर अंदर खाने पश्चाताप नहीं हुआ? तो बोले हाँ बहुत पश्चाताप हुआ। पर अगर पश्चाताप आपको रियली होता है तो दूसरे दिन तो फिर आपसे वो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, यानी आपको पश्चाताप तो होता ही नहीं है। फिर पता चला कि हम खरेखर रियलिटी में हमको पश्चाताप तो होता ही नहीं। हमको जब जब भी हम हर जगह पे ऐसा मार्क करते हैं कि अनसिंसियर अनसिंसियर अनसिंसियर, तो हमको ये पता चलता है कि हमको ये मार्क्स कैसे मिलेंगे दादा भगवान के पास। दादा भगवान की कृपा हमारे पे कैसे होगी? दादा भगवान की कृपा तभी हो सकती है जब हम हर जगह पे पास होंगे, तीन चीजों में हम सिंसियर रहेंगे, तभी दादा भगवान की हमारे पर कृपा होगी, तभी दादा भगवान की हमारे पास शक्ति इकट्ठी होगी। तो क्या हमको अभी अंदर से ऐसा, आपको क्या लगता है, निश्चय नहीं करना चाहिए, दादा से शक्ति नहीं मांगनी चाहिए, या हम रोज अपने आप को फेल करेंगे, रोज अपने आप को फेल करेंगे? हमको क्या करना चाहिए? हमको रात को सोते समय दादाजी हमको बोलते थे कि बिफोर यू गो टू स्लीप यू मस्ट सी दैट हाउ यू पास योर होल डे। आपने पूरा दिन कैसे गुजारा, कहाँ कहाँ आप सिंसियर रहे, कहाँ आप सिंसियर नहीं रहे, वो आप सोते समय पूरा ग्राफ बना के बाद में सोने का। अगर सिंसियर रहे तो अपने आप को शाबाशी देने का, बहुत अच्छा किया आपने, और कीप इट, और अब नेक्स्ट टाइम इससे भी और अच्छा करना। और अगर अच्छा नहीं किया, अनसिंसियर रहे, तो फिर अपने आप को बोलने का, आईने में जाके खड़े होने का और बोलने का कि ये आप गलत कर रहे हो, दादा भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं उतरेगी, आप भी अनसिंसियर रहोगे तो अभी लाइफ में आप प्रोग्रेस कब करोगे, प्रगति कब करोगे? तो ये मार्ग कैसा है, दादा भगवान की ब्लेसिंग आपको कब मिलेगी, ऐसा बातचीत करने का। और फिर अंदर दादा बोलते, जब तक आपको अंदर से पश्चाताप नहीं होगा कि आपने ये गलत किया, या आपने पूरा दिन अनसिंसियरली गुजार लिया, या आज दादा का आपका सत्साधन नहीं किया, तो आपको अंदर से बहुत खेद होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। क्या हमको 24 घंटे में से क्या 15 मिनट भी नहीं मिल सकता है हमारे काम के लिए? हमारा पूरा दिन है, 24 आवर्स इट इज इन आवर हैंड। कैन यू इमेजिन, वी कैन डू मिरेकल। 24 घंटा अगर एक इंसान के हाथ में हो और सिंसियरिटी हो और दादा की ब्लेसिंग हो और अपना निश्चय पक्का हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जब आप सिंसियरिटी से सब काम पूरे करते हैं तो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है, और जब से आपको अंदर से खुशी मिलेगी तो आपको समझ जाने का आज आपके ऊपर दादा की बहुत बड़ी कृपा उतरेगी। ख्याल आया सबको? मालूम पड़ गया सबको? और टाइम टेबल किसने भेजा? Okay, श्रेया एंड तप। ओके दीपिका जी। दीपिका जी। यही सच्चिदानंद, 2 टाइम टेबल आए, बाकी के कब आएंगे? कल हाँ कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे। चेन्नई से पोस्ट बहुत टाइम लगता है ना, बहुत दूर से आता है तो टाइम लगेगा। कल आ जाएगा। कल आ जाएगा। आज खुशी हैप्पी नहीं है। खुशी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? खुशी, यू आर नॉट हैप्पी? नहीं ना, मुंह तो देखो आप आईने में।
अभी अच्छा है, अभी है, ओके। ओके, अभी एक 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 इन्वेस्टिगेशन करने का है हमें। सारे दिन में कितना टाइम वेस्ट किया और कहाँ किया, कोई बता सकते हैं? हाँ, टाइम कहाँ वेस्ट किया और कितना टाइम वेस्ट किया, कहाँ किया? एनीबडी, समबडी? तो दीपक पता दादा। नहीं, कल कल बताने का उन लोग को। ठीक है, कल बताना। ओके, करिश्मा कुछ बताना चाहती है तो सुन तो लेते एक बार, बोलिए वो छोटी है क्विकली, ना, वो बोल सकती है। बोलो बोलो। हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने टाइम वेस्ट स्कूल में किया था। नहीं किया था? स्कूल में टाइम वेस्ट किया था। कैसे किया था? ओह फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तो स्कूल क्लास में नहीं गए थे? नहीं, क्लास में एब्सेंट थे। वो कितना टाइम वेस्ट हुआ? 1-2 घंटा हो गया? 40 मिनट्स। कितना? म्यूट। 40 मिनट्स। 4 minutes? 40 minutes। 40 minutes? वो आपने वो होमवर्क डिस्कस कर रहे थे, नहीं। फिर टीचर की मजाक करते थे, नहीं। फ्रेंड्स की मजाक करते थे? हाँ। अच्छा, वो केशवान जी को पूछते हैं, ऐसा मजाक करने का क्या बेनिफिट होता है? मजाक करने का बेनिफिट ये होता है कि एक दिन हम खुद ही मजाक बन जाते हैं, फिर हमारे लोग भी, हम पे भी लोग सब मजाक करना शुरू करेंगे। दादा ने बोला था क्या अपने जैसे जैसे हम जो जो चीज दूसरों के लिए करते हैं वो एक दिन हमारे साथ भी होगी। हम किसी को बोले हो जाड़िया जाड़िया, तो एक दिन हम खुद भी जाड़े बन जाएंगे। तो क्या उनके अंदर बैठा भगवान आपको आशीर्वाद देता है कि आप भी ऐसे जाड़ा बन जाओगे। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाने का, क्योंकि जिस जिसका अपन मजाक उड़ाते वो एक दिन हमारा भी मजाक उड़ाएंगे और हम खुद सबके सामने मजाक बन के रह जाएंगे। ख्याल आया? तो ये बहुत बड़ी जागृति रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम दूसरों के लिए करते कोई हमारे साथ करेगा तो हमको अच्छा लगेगा। कोई हमारा मजाक उड़ाए, कोई हमारा, हमको अच्छा लगेगा? हाँ, तो जब हमको अच्छा नहीं लगता है तो हमको जो जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है लाइफ में वो दूसरों के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि वो चीज उसको भी अच्छी नहीं लगती है, पर फिर भी हम अपना मजाक करते हो। दादाजी तो बोलते थे कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करने का। आपने तो 40 मिनट्स तक मजाक किया उसका, तो उसमें क्या होगा, हमको कितना नुकसान होगा। अच्छा, हम ऐसा मजाक करेंगे तो दादाजी की हमारे पे ब्लेसिंग्स रहेगी। दादाजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी नहीं हमको? नहीं। हाँ, तो ये सोचना ब्लेसिंग को चाहिए। क्या करने का है, उनको कोई जरूरत नहीं है ब्लेसिंग की। नहीं, क्या बात करते हो? हम ऐसा तो लगता है रोते, मुझे। हम तो दिन रात रोते थे कि हमको दादाजी कब ब्लेसिंग्स करेंगे, हम तरसते थे। और जिस दिन हमको ब्लेसिंग मिल जाती थी तो उस दिन तो हम नाचते थे। नहीं, इन लोगों को नहीं चाहिए, चाहिए कि किसको नहीं चाहिए? फिर इनसिंसियरिटी का प्रतिक्रमण तो किया होगा ना सब लोगों ने? ओ, फिर कब करेंगे? सोने से पहले। श्रिया ने तो कोई इनसिंसियर काम किया ही नहीं है ना। नहीं किया है, सोने से पहले मैं प्रतिक्रमण करूं। अच्छा, दक्ष भी कभी करता नहीं है इनसिंसियर, कभी रहता ही नहीं है इनसिंसियर। दक्ष दक्ष और फिर ये दर्शन भी तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है ना? नहीं, जरूरत है। फिर 2-3 दिन में हो जाएगा। दादा बहुत नहीं, जरूरत सोने से है मुझे। क्या बताया दक्ष मैंने? मुझे जरूरत है।
अच्छा जरूर है, लेकिन फिर कब करेंगे? सोने से पहले मैं करूंगा। तो चेन्नई ने कुछ बताया नहीं है। सोने से पहले कर बहुत काम हो जाएगा सोने से पहले। चलो अच्छा, वेरी गुड। चेन्नई में तो हम अनुज है, तो अभी पढ़ाई नहीं करने की है, खाने की नहीं है, सोने का नहीं है, अनुज को ध्यान रखने का है। सोने से पहले कर देंगे। यशवानंद जी बहुत अच्छी बात है ना, आपने हाँ। बताया ना सोने से पहले कि दिन भर क्या किया, क्या टाइम वेस्ट किया, क्या गलती की। तो कल बताना सब लोग को, क्या? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और जय सच्चिदानंद। जय टाइम सच्चिदानंद। टेबल का सिंसियरिटी रखो, ओके? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।